Dear students, in this third lecture of dielectrics and ferroelectrics, we are going to study the dielectric constant and polarizability. The relation between the dielectric constant and polarizability, which is the Clausius-Mosotty relation, and the electronic polarizability, the special treatment of the classical treatment of the electronic polarizability. As we know that when we applied electric field on a dielectric, then due to the electric field there are some polarizations and dipole moments meets, and the positive charges are displaced along the electric field while the negative charges are displaced opposite to the electric field. As a result, it means the electric field works on the dielectric atoms, and in response the energy is stored in the dielectric. We are going to study the dielectric constant, that is the ability of the material to store the electric energy. Actually, dielectric constant is a quantity measuring the ability of a substance to store electrical energy in an electric field. The dielectric constant is the ratio of the permittivity of a substance to permittivity of free space. It is an expression of the extent to which a material concentrates electric flux and is electrical equivalent of relative magnetic permeability. Here, permittivity is the ability of a substance to store electrical energy in an electric field. कीप इन माइंड, जो परमिटिविटी है ये एबिलिटी है किसी मटेरियल की स्टोर करने की, जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वो क्वांटिटी है जो मेजर करती है इस एबिलिटी को स्टोर करने की कि कितना को मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्यूबिक साइड्स, वी कैन से दैट डी इज इक्वल टू ई प्लस फोर पाई पी. यहाँ ई जो है वो मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और पी जो पोलराइजेशन है. The dielectric constant epsilon of an isotropic or cubic medium relative to vacuum is defined in terms of macroscopic electric field. E is equal to electric flux. हमारे पास आता है d by E means electric flux density divided by electric field strength, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू हम लोग डी की वैल्यू जो है ई प्लस फोर पाई पी अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास आता है फोर पाई पी प्लस ई ओवर ई. सिंप्लीफाई करने के बाद वन प्लस फोर पाई पी बाई ई, दैट इज इक्वेशन नंबर वन. द डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी connects the macroscopic field E with the polarization P such that P is equal to chi E. अब हमारे पास एक्चुअली पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियली हम वी गेट chi is equal to P over E. Using this P by E is equal to chi in equation number 1, we get epsilon is equal to 1 plus 4 pi chi as equation number P. It means chi is equal to epsilon minus 1 over 4 pi. In the non-cubic crystals, the dielectric response is described by the components of susceptibility tensor or dielectric constant tensor. एक्चुअली आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो है जिनके अंदर क्या है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में एक जैसी चेंज हो रही होती है, जबकि जो नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स होंगे उनके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पोलराइजेशन है और डाइलेक्ट्रिक है ये यूनिडायरेक्शनली रहेंगे, इवन दे आर रिप्रेजेंटिंग बाय द इन टर्म्स ऑफ टेंसर्स. द पोलराइजेशन इट मीन्स हमारे पास क्या मिलेगा, पी म्यू इज इक्वल टू काई म्यू न्यू ई न्यू, और जब कैप्सलॉन म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल्टा म्यू न्यू प्लस फोर पाई काई म्यू न्यू. The polarizability alpha of an atom is defined in terms of the local field at an atom. P is equal to alpha E. एक्चुअली पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये हमारे पास अल्फा जो है यहाँ पर क्या है, P is the dipole moment and polarization in a crystal is defined as the product of the polarizability of the atoms times to the local electric field. P is equal to sigma j n j p j, और अगर हम पी जे की वैल्यू इसमें यूज़ करते हैं अब इक्वेशन से तो P is equal to आएगा सिग्मा जे एन जे अल्फ़ा जे ई लोकल. इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आती है, और यहाँ पर एन जे इज़ द कंसनट्रेशन एंड अल्फ़ा जे इज़ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम्स जे, एंड ई जे लोकल इज़ द लोकल फील्ड एट एन एटम एट साइड जे. But we know that the local field is given by the Lorentz relation. When E3 was 0 in last lecture, E local is equal to E plus 4 pi by 3 multiplied by P. Actually, macroscopic electric field plus 4 pi by 3 मल्टीप्लाई बाई पी हमारे पास क्या है, ई लोकल होता है. और इस ई लोकल की वैल्यू अगर हम 3 में यूज़ करते हैं तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम लोग कुछ सिंप्लीफाई करते हैं और पी टर्म्स को लेफ्ट में ले जाते हैं. पी को कॉमन लेने के बाद पी इज इक्वल टू सिग्मा जे एन जे अल्फा जे ई ओवर 1 माइनस सिग्मा जे
अल्फा जे 4 पाई/3 इक्वेशन 5 हमारे पास मिलती है। एज वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ए काई इज इक्वल टू क्या था, P/E। तो अगर हम पी की वैल्यू इसमें यूज़ कर देंगे तो काई इज इक्वल टू के हमारे पास क्या आएगा, ये कि ई सी कट जाएगा और काई हमारे पास सिंप्लीफाई होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एज वी नो दैट द इक्वेशन बी हमने लिखी थी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1+4 पाई काई। तो काई की वैल्यू अब इक्वेशन से अगर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हमारे पास, ये सिंप्लीफाई कुछ करने के बाद हमारे पास क्या है, रिलेशन में हम लोग को फैक्टर्स को एक तरफ ले जाते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं और हमारे पास एप्सिलॉन-1 और एप्सिलॉन-2 is equal to 4 pi/3 sigma j and j alpha j, which is the Clausius-Mosotty relation. This relates the dielectric constant to electronic polarizability, but for the crystal systems for which the Lorentz local field is obtained, वो मटेरियल जिनके अंदर लॉरेंस फील्ड नहीं डिराइव किया जा सकता उसके लिए ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। अब हम लोग को पता है कि जो टोटल पोलराइजेबिलिटी है मे यूजुअली बी द सेपरेटेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, सेकंड इज आयनिक पोलराइजेबिलिटी, थर्ड इज डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी क्या है, जब हमारे पास क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन अराइजेस फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल रिलेटिव टू द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन जो है शेल जो है वो न्यूक्लियस के लिहाज से जो डिस्प्लेस होते हैं उससे जो डाइपोल मोमेंट मिलती है वो पोलराइजेशन आती है, वो पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी होगी। और जबकि जो हमारे पास आयनिक कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर आयन, एक आयन जो दूसरे आयन के साथ डिस्प्लेस होता है। और जब थर्ड है डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी अराइज फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स विद अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट कैन चेंज ओरिएंटेशन ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, जो परमानेंट डाइपोल हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट उनकी वजह से हमारे पास आती है। The dielectric constant at optical frequencies arises almost entirely from the electronic polarizability. जब हाई फ्रीक्वेंसीज हमारे पास होती हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। द डाइपोलर आयनिक कंट्रीब्यूशंस आर स्मॉल एट हाई फ्रीक्वेंसीज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मालिक्यूल्स एंड आयंस। क्योंकि आयंस और मालिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है तो उसका इनर्शिया की वजह से क्या है उनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जबकि आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो डोमिनेट करता है। हमारे पास जो रिलेशन लास्ट था एप्सिलॉन-1 और एप्सिलॉन+2 इज इक्वल टू 4 पाई/3 सिग्मा जे एन जे अल्फा जे। तो इन द ऑप्टिकल रेंज इट रिड्यूसेस टू n² - 1 ओवर n²+2। यहाँ पर एप्सिलॉन एक्चुअली n² के बराबर है तो इसलिए n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन समवट डिपेंड्स ऑन द environment in which it is placed. The negative ions are highly polarizable because they are large in size। क्योंकि वो एटम जिनका साइज़ बड़ा होगा उनके आउटर मोस्ट शेल की जो बॉन्डिंग्स है न्यूक्लियस के साथ वो वीक होगी और वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, उनकी डाइपोल मोमेंट वहाँ ज़्यादा मिलेगी जिसकी वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। In an electron bound harmonically to an atom will show response absorption at a frequency। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या है, बीटा/m है √। और बीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर m के। इक्वेशन ए अगर हम इसको कहते हैं तो बीटा इज़ द फोर्स कांस्टेंट हमारे पास, और द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास हो गया फिजिकल टू क्यू ई होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या आ गई माइनस, क्योंकि चार्ज नेगेटिव डिस्प्लेस हुआ है तो माइनस साइन हमारे पास आ गया -e और ई लोकल। और जबकि इज इक्वल टू बीटा एक्स, क्योंकि बीटा फोर्स कांस्टेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हमारे पास है तो -e लोकल इज इक्वल टू आ गया बीटा की वैल्यू यूज़ कर दी इसके अंदर हमने -ओमेगा नॉट स्क्वायर mx और इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा नॉट स्क्वायर mx, ये इक्वेशन बी बन गई। सो द स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज गिवन बाय अल्फा इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू p/e लोकल। अब हम लोग जो ई लोकल की वैल्यू यहाँ से है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे, और जबकि पोलराइजेशन हमें पता है प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और p इज इक्वल टू QD हमारे पास अगर रिलेशन आता है तो क्यू यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है माइनस इलेक्ट्रॉन पे तो ये -ex आएगा, और पी की जगह -ex लिखेंगे और ई लोकल की वैल्यू हम लोग जो है वो इक्वेशन बी से अगर यूज़ करते हैं इसके अंदर m ओमेगा नॉट स्क्वायर x,
तो ये हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव साइन वहाँ से जो यहाँ आई थी वो कट गई इसके साथ, और अल्फा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आएगा, ई स्क्वायर ओवर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। और अब जब के फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा, तो उस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो अल्फा इजिकल टू ई स्क्वायर ओवर एम डिवाइड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। क्लासिकली जो है अल्फ़ा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इस फॉर्म में आएगी। और जबकि क्वांटम मैकेनिकली अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी जो है अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई स्क्र बाई एम सिग्मा आई जे एफ आई जे ओवर ओमेगा आई जे स्क्र माइनस ओमेगा स्क्र। एक्चुअली एफ आई जे इज कॉल्ड द ऑसिलेटर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन बिटवीन द एटॉमिक स्टेट्स आई एंड जे। तो हमने सिर्फ क्लासिकली ड्राइव किया और ये डायरेक्ट हमने क्वांटम मैकेनिकली लिखी है एट दिस स्टेज। थैंक्स।